Hello everyone, welcome back. So in this video, we'll be discussing a topic that has been asked previously in the examination. So crop diversification. So it is an important topic because even government through various programs is also putting a lot of effort in crop diversification. So they are trying to promote crop diversification, especially in the green revolution belt. So in Punjab, Haryana, UP, and even in other parts, government is actively promoting crop diversification through various schemes. Okay, and annually some amount of money is also allocated. Okay, so budget भी allocate होता है through crop diversification program. So this topic is important because it is in news, and previously also a question was asked on this particular topic, and regularly ये question इस topic पे questions तुमको मिल जाएंगे even in prelims also. Okay, so why is crop diversification more beneficial than traditional monoculture system? So this was the question. So why it is more beneficial than the traditional monoculture system? So we will discuss this particular topic. We will first see what is the meaning of the term monoculture or monocropping. Sometimes people confuse between these two terms. So monocropping and monoculture kya hota hai? First we will discuss that. Then we will see what are the disadvantages of monoculture or monocropping, kya disadvantages hain. Then we will see what is crop diversification, what are the advantages of crop diversification, and the efforts of government. So government कोई scheme चला रही है, तो एग्रीकल्चर में जनरली करंट अफेयर्स का बहुत ज्यादा रिलेवेंस नहीं है, बट देर आर सर्टेन टॉपिक्स वेयर यू विल हैव to add certain programs which are run by the government in that particular area. जैसे तुम्हारा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का ले लो, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम है अंडर कृषि विकास योजना, एंड यू हैव क्रॉप इंश्योरेंस. ओके, फसल बीमा योजना के अंदर है. इरिगेशन के ऊपर अगर कोई प्रोग्राम है तो इफ देयर इज एनी स्कीम रन बाय द गवर्नमेंट, तुम उसको ऐड कर सकते हो at the end of it. So उस टॉपिक के लास्ट में, so this is the particular scheme regarding this particular topic run by the government कि ये कर रही है. Okay, so protected agriculture का अगर कोई टॉपिक है तो अंडर नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के अंदर तुमको सब्सिडी मिल जाएगा. उस तरह के पॉइंट्स तुम ऐड कर सकते हो. Okay, from the current affairs. So crop diversification. So let us first see. तो क्वेश्चन में क्या पूछा था? व्हाई इट इज बेनिफिशियल देन मोनोकल्चर सिस्टम, ट्रेडिशनल मोनोकल्चर सिस्टम. सो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मोनोकल्चर सिस्टम, देन वी विल मूव ऑन टू क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन. सो मोनोक्रॉपिंग और मोनोकल्चर, सो जनरली ना बहुत बार बुक्स में दोनों को एक ही है, दे आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, बट एक्चुअली दोनों में डिफरेंस है, दोनों सेम टर्म नहीं है. मोनोक्रॉपिंग एंड मोनोकल्चर इज डिफरेंट. Okay, both are different. So monocropping / monoculture is the agricultural practice of growing a single crop year after year on the same land. Okay, so in the absence of rotation, so without any crop rotation or without intercropping, they are growing same crop on the same piece of land year after year. एक ही क्रॉप उस लैंड पे हर साल ग्रो कर रहे हैं. सो दैट इज मोनोक्रॉपिंग और मोनोकल्चर. सी, मोनोक्रॉपिंग / मोनोकल्चर बहुत जगह पर तुमको ऐसे ही दिखेगा, बट मोनोक्रॉपिंग और मोनोकल्चर में डिफरेंस है. सो लेट अस डिस्कस द डिफरेंस. दोनों का डिफरेंस क्या है? सो इफ यू सी मोनोक्रॉपिंग, so monocropping means growing a single crop on a particular land per year. यानी एक ही क्रॉप ग्रो कर रहे हो, दैट इज मोनोक्रॉपिंग. सिंपल वर्ड्स. अगर तुम एक क्रॉप ग्रो कर रहे हो, तुम्हारे पास 1 acre ऑफ लैंड है, सो ऑन योर 1 acre ऑफ लैंड यू आर ग्रोइंग ओनली 1 क्रॉप बिकॉज तुम्हारे पास कोई इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है. द मेन लिमिटिंग फैक्टर क्या है एग्रीकल्चर में? इट इज वाटर, इरिगेशन. सो इंडिया में जितना भी लैंड है उसमें ओनली
अराउंड 34% इज इरिगेटेड लैंड, बाकी तो पूरा ड्राई लैंड है, रेन फेड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता है। तो रेन जो तुम्हारा मेनली आता है दैट इज फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून, सो दैट कम्स इन समर, तो तुम्हारा वो मिड जून से शुरू होके जुलाई अगस्त उस टाइम पे आता है। सो ओनली सिंगल क्रॉप इज ग्रोन इन खरीफ, खरीफ में क्रॉप ग्रो होता है, फिर उसको नवंबर दिसंबर में हार्वेस्ट कर लेते हैं, देन डन, उसके बाद बारिश नहीं होता है, सो देयर इज नो क्रॉप। ओनली सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन ए पीस ऑफ लैंड पर ईयर, दैट इज कॉल्ड मोनो, सिंगल क्रॉप, मोनोक्रॉपिंग। ठीक है, ये इसको मोनोक्रॉपिंग बोलते हैं, एक ही क्रॉप ग्रो कर रहे हो साल में, दैट इज मोनोक्रॉपिंग। ठीक है, अगर तुम एक से ज्यादा क्रॉप ग्रो करते हो देन इट कम्स अंडर मल्टीपल क्रॉपिंग, तब वो मल्टीपल क्रॉपिंग में आता है। उसमें फिर मल्टीपल क्रॉपिंग में यू हैव इंटरक्रॉपिंग एंड ऑल दैट, मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग, वो सब फिर मल्टीपल क्रॉपिंग के अंदर आता है। एक ही क्रॉप ग्रो करते हो तो मोनोक्रॉपिंग बोलते हो। व्हेन यू ग्रो मोर देन वन क्रॉप पर ईयर इट कम्स अंडर मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक है, याद रखना। सो मोनोक्रॉपिंग मींस ओनली वन क्रॉप पर ईयर। अब देखो, हो सकता है 2020 में मैंने मेज ग्रो किया था, ओके, 2020 में मेज ग्रो किया। 2021 का जो खरीफ है उसमें मैंने सोरगम ग्रो किया। 2022 का जो है उसमें मैंने बाजरा ग्रो किया। 2023 वाले में आई हैव ग्रोन सम अदर क्रॉप। पर साल में एक ही क्रॉप डाल रहा हूं मैं, एक साल में एक ही क्रॉप है, बट एवरी ईयर आई एम ग्रोइंग ए डिफरेंट क्रॉप, उसको भी मोनोक्रॉपिंग ही बोलेंगे, क्योंकि तुम साल में तो एक ही क्रॉप डाल रहे हो, साल में एक ही क्रॉप डाल रहे हो। कौन सा क्रॉप डाल रहे हो उससे मतलब नहीं है, बट एक ही क्रॉप है, देन इट इज कॉल्ड मोनोक्रॉपिंग। नाउ ठीक है, मोनोक्रॉपिंग हो गया। अब आ जाओ, मोनोकल्चर का मतलब क्या है? मोनोकल्चर का मतलब है you might be growing more than one crop in a year, यानी सपोज तुम्हारे पास इरिगेशन है, इरिगेशन फैसिलिटी है, तो तुम एक क्रॉप पे क्यों रुकोगे? दो क्रॉप भी लगा लोगे, तीन भी लगा लोगे। इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया 3 क्रॉप्स आर ग्रोन। डेल्टा रीजन में जाओगे तुम, कावेरी डेल्टा में और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में, दे ग्रो 3 क्रॉप्स पर ईयर। पैडी, ओके, 3 बार पैडी लगाते हैं, क्योंकि पानी, प्लेंटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल, पूरा समुद्र में तो जा रहा है, उससे पहले कैनाल के थ्रू इरिगेशन देते हैं। सो इफ यू हैव इरिगेशन वाटर यू विल गो फॉर 2 क्रॉप्स और 3 क्रॉप्स, ओके। पर अगर मैं साल में 2 क्रॉप लगाता हूं, पर दोनों सीजन में, खरीफ एंड रबी, इन बोथ द सीजन्स इफ आई एम ग्रोइंग सेम क्रॉप, खरीफ में भी मैंने राइस लगाया, रबी में भी राइस लगा रहा हूं। देखो, राइस इज ए खरीफ क्रॉप, क्यों? टेम्परेचर रिक्वायरमेंट उसका जो वो सब है, वो खरीफ सीजन में जो होता है उसका रिक्वायरमेंट है। बट रबी हम लोग जब बोलते हैं तो विंटर क्रॉप जो है, नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर्स कम हो जाते हैं, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में टेम्परेचर्स विल ड्रॉप, बट जो तुम्हारा मैरीटाइम क्लाइमेट है साउथ इंडिया में, टेम्परेचर नेवर ड्रॉप्स बिलो 25। इवन रबी में भी तुम्हारा दिन में तो 25 के ऊपर ही रहता है, रात में ड्रॉप होता है, बट डे टाइम में तो 25 के ऊपर ही रहता है। सो दैट इज सफिशिएंट टू ग्रो राइस, 25 के ऊपर रहना चाहिए टेम्परेचर। सो रबी खरीफ दोनों सीजन में तुम राइस ही लगा रहे हो, ये मोनोक्रॉपिंग नहीं है। साल में 2 क्रॉप लगा रहे हो, साल में 1 क्रॉप लगाओगे तो मोनोक्रॉपिंग है, साल में 2 क्रॉप लगा रहे हो, अब ये मोनोक्रॉपिंग नहीं है, दिस इज नॉट मोनोक्रॉपिंग। पर ये मोनोकल्चर है, एक ही क्रॉप लगाए जा रहे हो बार बार, यू आर ग्रोइंग सेम क्रॉप अगेन एंड अगेन। समटाइम्स मोनोक्रॉपिंग कैन ऑल्सो बी मोनोकल्चर, है ना? मोनोक्रॉपिंग कैन ऑल्सो बी मोनोकल्चर। कैसे? मैं साल में एक ही क्रॉप लगाता हूं, पर मैं हर साल एक ही क्रॉप लगाता हूं, साल में एक ही क्रॉप लगाऊंगा, बट एवरी ईयर आई विल ग्रो सेम क्रॉप। लाइक 2020 में मेज, 2021 में मेज, 2022 में मेज, 2023 में मेज, साल में एक ही क्रॉप लगा रहा हूं, बट आई एम गोइंग विद द सेम क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर। देन मोनोक्रॉपिंग एंड मोनोकल्चर दोनों कर रहा हूं मैं वहां पर, then your monocropping is also monoculture. But in this case, जब पर तुम 2 साल में 2 बार राइस लगा रहे हो, it is not monocropping because you are growing more than one crop, but it is monoculture because you are growing same crop on the same piece of land again and again.
दैट इज मोनोकल्चर. सो मोनोक्रॉपिंग एंड मोनोकल्चर में डिफरेंस है, दोनों सेम चीज नहीं है. ठीक है. So for example, so without any crop rotation or without intercropping, okay, so absence of rotation through other crops or growing multiple crops grow नहीं कर रहे हो या rotation भी नहीं कर रहे हो, that is called as monocropping. So in case of monoculture, you don't rotate same crop again and again, that is monoculture. Monocropping means only one crop per year. That is monocropping. So maize, soybean, in some parts of India rice and wheat are common crops that are grown using monocropping technique. So monocropping और monoculture में difference है, ये चीज याद रखना. ठीक है. हाँ, क्या डिसएडवांटेजेस है भाई? ठीक है, मोनोक्रॉपिंग कर रहे हो तो क्या डिसएडवांटेजेस है? मोनोकल्चर में क्या डिसएडवांटेजेस है? सो डैमेज टू द सॉइल क्वालिटी. अगर तुम एक ही क्रॉप बार बार लगाते जाओगे तो क्या होगा? सपोज तुम कोई सीरियल क्रॉप लगा रहे हो. सीरियल क्रॉप्स आर एग्जॉस्टिंग क्रॉप्स, वो ज्यादा न्यूट्रिएंट्स लेते हैं सॉइल से. सो न्यूट्रिएंट्स विल बी डिप्लीटेड. रोटेट करोगे अगर तुम, सपोज टू क्रॉप्स, यू आर ग्रोइंग टू क्रॉप्स बट यू आर ग्रोइंग सेम क्रॉप इन बोथ द सीजन्स. राइस ग्रो कर रहे हो. अरे एक सीजन में राइस डाल लो, दूसरे सीजन में कोई और क्रॉप के साथ रोटेट करो. यू ग्रो पल्स इन रबी में कोई पल्स लगाओ. सो जो भी तुम्हारा न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट हुआ है, दे विल बी रिप्लेनिश्ड बिकॉज लेग्यूम्स हैव दिस एबिलिटी टू फिक्स नाइट्रोजन. ओके, सो ऑर्गेनिक मैटर भी ऐड होगा, नाइट्रोजन भी फिक्स होगा. सो मोनोक्रॉपिंग करोगे तो क्रॉप रोटेशन नहीं है, क्रॉप रोटेशन नहीं है तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी नहीं है. सो you have to add more fertilizers because there will be no replenishment of nutrients. ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करना पड़ेगा, पेस्टिसाइड ज्यादा यूज करना पड़ेगा. क्यों? अगर तुम एक ही क्रॉप लगा रहे हो बार so the pest will remain in the area, they will become endemic. तो वो डिजीजेस वहीं रहेंगे क्योंकि उनको बार होस्ट मिल रहा है. The insects will become permanent, the host, the disease, they will become endemic to that particular pathogen. endemic बन जाएगा तो हर साल वही डिजीज आता रहेगा and you have to spray more and more pesticide. फिर environment को भी डैमेज होगा, pollution वाला केस होगा, loss of biodiversity, and ultimately slowly what you will see over the years, the yields will be reduced. So पूरा नुकसान ही है इसका. Okay, so there are a lot of disadvantages if you go with monocropping or monoculture. Now what do you mean by crop diversification? मतलब क्या crop diversification का? Okay, so crop diversification refers to addition of new crops or cropping systems to agricultural production on a particular farm. So अगर तुम एक नए क्रॉप को ऐड करते हो तुम्हारे फार्म में, so जो तुम्हारा क्रॉपिंग सिस्टम है उसमें एक नए क्रॉप को ऐड करो ताकि either through intercropping or crop rotation system, so that all the disadvantages which we have shown earlier, they will be removed. ताकि तुम्हारा रिप्लेनिशमेंट हो, ज्यादा न्यूट्रिएंट्स ऐड करने की जरूरत ना हो, इंसेक्ट पेस्ट या डिजीज डैमेज ज्यादा ना हो, इसलिए यू ऐड ए न्यू क्रॉप. ओके, सो यहां पर एक टर्म यूज किया होगा, देखना, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन रिफर्स टू एडिशन ऑफ न्यू क्रॉप्स और क्रॉपिंग सिस्टम. नाउ क्रॉपिंग सिस्टम का मतलब क्या है? सो देयर आर टू टर्म्स, क्रॉपिंग पैटर्न Okay, so cropping pattern means, to put it in very simple terms, the majority of the farmers, okay, so the crop which is grown by majority of the farmers. तो एक एरिया में जो majority of farmers जो crop grow करते हैं उस एरिया का वही cropping pattern है. Okay, the cropping pattern of the area is, it depends upon the farmers. So majority of the farmers, दे ग्रो ए स्पेसिफिक क्रॉप, क्योंकि उस क्लाइमेट में, उस सॉइल के हिसाब से वो जो वहां का डोमिनेंट क्रॉप है, ओके, मेन क्रॉप जो है. सो सपोज खरीफ में सब लोग पैडी लगाते हैं, खरीफ में सब लोग राइस लगाते हैं, बट रबी में कुछ लोग व्हीट लगाते हैं, कुछ लोग पल्सेस लगाते हैं, कुछ लोग ऐसे, बट राइस इज द डोमिनेंट क्रॉप. सो राइस बेस्ड क्रॉपिंग पैटर्न है. सो क्रॉपिंग पैटर्न इज द क्रॉप ग्रोन बाय मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स इन द एरिया, दैट इज क्रॉपिंग पैटर्न. नाउ क्रॉपिंग सिस्टम का मतलब क्या है? When we add management to cropping pattern, it becomes cropping system. Management को जब तुम ऐड कर दोगे
क्रॉपिंग पैटर्न plus management, it becomes cropping system. क्रॉपिंग पैटर्न प्लस मैनेजमेंट बिकम्स क्रॉपिंग सिस्टम. अब क्रॉपिंग पैटर्न प्लस मैनेजमेंट का मतलब क्या है? देखो, क्रॉपिंग पैटर्न में बोला हमने कि द क्रॉप ग्रोन बाय मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स. सपोज राइस ग्रो कर रहे हैं. अब राइस का जो मैनेजमेंट है वो अलग अलग एरिया में अलग अलग हो सकता है, राइट? सपोज इन सम एरिया वेयर देयर इज प्लेंटी ऑफ वाटर, दे ग्रो राइस बाय पडलिंग द फील्ड स्टैंडिंग वाटर कंडीशन में. तो स्टैंडिंग वाटर में राइस को ग्रो कर रहे हैं सबमर्ज्ड कंडीशन में. ओके, लो लैंड पैडी कल्टीवेशन हो रहा है, सबमर्ज्ड कंडीशन में पैडी कल्टीवेट कर रहे हैं क्योंकि पानी भी बहुत है, राइट? देन पैडी कैन आल्सो बी कल्टीवेटेड बाय डायरेक्ट सोइंग. ओके, ट्रांसप्लांटिंग करने की जरूरत ही नहीं है, सबमर्ज कंडीशन की जरूरत नहीं है. डायरेक्टली जैसे वीट को सो करते हैं वैसे भी सो करते हैं, डायरेक्ट सीडेड राइस. यहां पर थोड़ा सा वीड का प्रॉब्लम आएगा, बट यू कैन ग्रो इट लाइक दिस ऑल्सो. देखो, दोनों जगह पर राइस ही ग्रो कर रहे हैं, लेकिन दोनों जगह पर मैनेजमेंट अलग अलग है. एक जगह पर पूरा फील्ड प्रिपरेशन, पडलिंग एंड ऑल दैट, इरिगेशन वाला वो सब सिस्टम अलग है, वीड मैनेजमेंट, एवरीथिंग. इधर पूरा चीजें अलग है बिकॉज फील्ड प्रिपरेशन अलग है, इरिगेशन सिस्टम अलग है, यहां पर वीड मैनेजमेंट अलग है. सो द मैनेजमेंट ऑफ सेम क्रॉप इज डिफरेंट इन डिफरेंट एरियाज. सो जब एक क्रॉपिंग पैटर्न को मैनेजमेंट तुम ऐड करते हो, वो क्रॉपिंग सिस्टम बन जाता है. क्रॉपिंग सिस्टम में भी डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द एरिया. सेम क्रॉप कर रहे हैं ग्रो, लेकिन दो अलग अलग एरिया में ग्रो कर रहे हैं और दोनों का क्रॉपिंग सिस्टम अलग है. सेम क्रॉप है लेकिन मैनेजमेंट इज डिफरेंट, राइट? सो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन रिफर्स टू addition of new crops or cropping systems to agriculture production on a particular farm, taking into account the different returns from added crop with complementary marketing opportunities. So देखो, अगर तुम सपोज इंटरक्रॉपिंग कर रहे हो या फिर क्रॉप रोटेशन कर रहे हो, अगर दो क्रॉप्स तुम लगा रहे हो तो यू हैव मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज. अगर तुम्हारे पास कहीं है, बेच सकते हो इजीली, तुम एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हो. ओके, यू कैन अर्न एक्स्ट्रा इनकम और रिस्क भी कम होगा. सपोज यू आर गोइंग फॉर इंटरक्रॉपिंग कर रहे हो, सो अगर एक क्रॉप के ऊपर इंसेक्ट पेस्ट ने डैमेज कर दिया तो दूसरा क्रॉप तो रहेगा. सो रिस्क मैनेजमेंट भी है, यहां पर रिस्क को भी मिनिमाइज कर रहे हो. पर अगर तुमने एक ही वेराइटी लगाया है, सेम क्रॉप, पूरा का पूरा क्रॉप पे डिजीज आ गया तो पूरा लॉस हो जाएगा. पर अगर इंटरक्रॉपिंग कर रहे हो, हाफ ऑफ द क्रॉप विल बी डैमेज, रेस्ट हाफ विल गिव यू सम इनकम, वो भी है. ओके, द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कल्टिवेटेड स्पीशीज and improved varieties of crop is a technology aimed at enhancing the plant productivity, quality, health and nutritional value of both health of soil and both crop, nutritional value for the crop. Okay, building crop resilience to disease and pest, soil quality enhancement. See, जो तुम्हारे disadvantages थे वो सारे यहां पर निकल जाएंगे. All the disadvantages of monoculture will be removed if you add additional crop, and especially अगर तुम्हारा कोई cereal crop है, dominant crop, you add a legume. Okay, so crop rotation में भी कुछ principles हैं जो हमको follow करने पड़ते हैं. Always rotate shallow rooted crop with deep rooted crop. Okay, preferably legume. अगर कोई nitrogen fixing ability है तो वो वाला crop definitely होना चाहिए. It will replenish the nutrients. Okay, always rotate with crops of different families so that pests and disease same na ho. So those points you have to remember while going for choosing of the alternate crop, right? So crop diversification is intended to give a wider choice in the production of a variety of crops in a given area, to expand the production related activities on various crops and to reduce the risk. फार्मर का रिस्क भी मिनिमाइज होता है क्योंकि एक अगर क्रॉप गया तो दूसरा तो बचेगा. डोंट डिपेंड अपॉन सेम क्रॉप. तो एक दो क्रॉप्स लगाओ, एक नुकसान भी होता है तो दूसरा हमेशा रहेगा. यू विल गेट सम इनकम फ्रॉम द सेकंड क्रॉप. एंड वैल्यू एडिशन का चांस है, न्यू मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर सकते हो तुम. ओके, देयर इज ऑलवेज, if you have a legume, then
फैमिलीज नीड्स कैन बी मेट ना। जो तुम्हारा है जो तुम्हारा सीरियल है, जिससे पैडी है, वो तो तुम्हारा कैलोरीज को टेक केयर करता है, सो दैट विल प्रोवाइड कैलोरीज, बट टू प्रोवाइड प्रोटीन्स एंड ऑल, इफ यू हैव a legume, that will fulfill the family's needs also. Then advantages क्या है भाई इसके? What are the advantages of your crop diversification? पहली चीज है, it will help the farmers make the ends meet. Farmers का जो various needs है, that will be fulfilled. His family's needs will be fulfilled. He will get additional income. Risk will be minimized. All those things are there. So as crop prices become less and less stable, so एक safety रहेगा उसके लिए अगर दूसरा crop भी है. Even if the price of one crop falls, at least he will get some income through the other crop. Okay. So as the crop prices become less and less stable and growing conditions become more difficult, many farmers are struggling to ensure their financial security. So however, farmers can reduce the economic uncertainty by cultivating more than one type of crop. क्यों एक crop पे डिपेंड करना? अगर उसका प्राइस गिर गया तो पूरा नुकसान होगा, अगर प्राइस उसका उठ गया तो ज्यादा प्रॉफिट होगा, पर रिस्क तो है ना. सो क्यों रिस्क लेना? सो दो क्रॉप ग्रो करो, एक गया भी तो दूसरा रहेगा. Furthermore, diversification lets the farmer take advantage of the local markets in the region. If he has marketing opportunities, he can take advantage of that. Less incidence of pest and disease. सेम क्रॉप लगाते रहोगे तो वहां पर वो डिजीज हमेशा रहेगा, एंडेमिक बन जाएगा, बिकॉज होस्ट इज ऑलवेज अवेलेबल. सो रोटेट जब कर रहे हो तो गो विथ क्रॉप्स फ्रॉम डिफरेंट फैमिलीज, ताकि वही सेम पेस्ट एंड डिजीज अटैक ना कर सके नेक्स्ट क्रॉप को भी. सो पेस्ट एंड डिजीज इंसिडेंस विल बी रिड्यूस. ओके. So the traditional way to grow crops is to plant a single cultivar in a given area. However, this results in entire fields that are susceptible to the same disease. पूरा एक ही क्रॉप लगाए तो एक डिजीज आ जाए तो पूरा क्रॉप खराब हो जाएगा. So वही अगर तुमने हाफ फील्ड में लेग्यूम लगाया, दूसरे हाफ फील्ड में कोई और क्रॉप लगाया, even if one crop is damaged, the other crop will give you some income. So risk भी मिनिमाइज होता है. Okay? फार्मर का एंटायर हार्वेस्ट भी स्टेक पे नहीं होगा. So it lessens the environmental impact, so less disease incidence, so less pesticidal spray, less fertilizer spray. फर्टिलाइजर की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी. सपोज अगर तुम लेग्यूम के साथ क्रॉप रोटेशन कर रहे हो तो some of the fertilizer requirement will be fulfilled by the nitrogen fixation. तो कम फर्टिलाइजर यूज करना पड़ेगा. कम फर्टिलाइजर यूज करोगे means less pollution, less pesticides by rotating with a crop of different family means less pest load. So less pest load होगा तो less pesticides will be applied. So less pesticides means less environmental pollution. तो ये सब advantages हैं diversification के. So you have to give at least 2 to 3 points to explain why diversification is important. कि diversification से जो तुम्हारे मोनोकल्चर में losses हो रहे थे वो eliminate हो जाएंगे. So through diversification we can minimize the losses of monoculture. Then अब लास्ट पे आ जाओ. इट इज अ टाइप ऑफ कंक्लूजन. ये एक तरह का कंक्लूजन है. सो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम. सो हमारा जो है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम, इट इज ए सब स्कीम अंडर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना. सो ये 2013-14 में स्टार्ट हुआ था. 2013-14 अंडर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना. इट इज अ सब स्कीम. सो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम, सो इसमें क्या है ना, फंडिंग दिया जाता है हर स्टेट को. सो फॉर एग्जांपल मेनली तो तुम्हारा ग्रीन रेवोल्यूशन बेल्ट जो है वहां पर मेन फोकस है, एंड इन अदर स्टेट्स आल्सो. फॉर एग्जांपल ये राइस वीट सिस्टम से थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने के लिए, बिकॉज राइस वीट क्रॉपिंग सिस्टम जो है इसने एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा डैमेज किया है. सो वी विल आल्सो मेक ए वीडियो, आई विल आल्सो मेक ए वीडियो ऑन इम्पैक्ट ऑफ राइस वीट क्रॉपिंग सिस्टम, ओके, ऑन द एनवायरमेंट, या फिर उसके क्या नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे इन अनदर वीडियो. नाउ सो राइस वीट क्रॉपिंग सिस्टम से फार्मर्स को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई होने के लिए गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है. ठीक है. सो गवर्नमेंट इज आस्किंग द फार्मर्स, दे आर ट्राइंग टू प्रमोट डिफरेंट क्रॉप्स इन द रीजन सो दैट दे विल डाइवर्सिफाई फ्रॉम दीज टू क्रॉप्स. क्योंकि एनवायरमेंट को बहुत डैमेज किया है, बहुत ज्यादा वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप्स हैं, पेस्टिसाइड ज्यादा इससे यूज होता है.
सो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम, इसमें फंडिंग देते हैं हर स्टेट को, मेनली तुम्हारा ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन बेल्ट है एंड टोबैको ग्रोइंग रीजन्स। सो टोबैको कहाँ ग्रो होता है? तुम्हारे पास टोबैको है गुजरात में, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका से, दीज आर फ्यू ऑफ द मेजर टोबैको ग्रोइंग रीजन। सो टोबैको ग्रोइंग रीजन्स एंड मेजर तुम्हारा जो ग्रीन रेवोल्यूशन बेल्ट है जहां से तुम्हारा राइस एंड व्हीट आता है, इन दोज एरियाज गवर्नमेंट इज मेनली फोकसिंग फॉर डाइवर्सिफिकेशन। सो इट इज being implemented in the original green revolution states to divert the area of paddy crop to alternate crops, and in the tobacco growing states to encourage tobacco farmers to take up some other crops. ये जो मोनोकल्चर से बहुत डैमेजिंग हो रहा है एनवायरनमेंट को, तो उनको डाइवर्सिफाई करने के लिए, दूसरे क्रॉप्स को प्रमोट करने के लिए बजट इज अलॉटेड टू एवरी स्टेट बिलोंगिंग टू दीज टू। जो भी ग्रीन रेवोल्यूशन वाला स्टेट है, जो भी टोबैको ग्रोइंग स्टेट्स हैं, वहां पे दूसरे क्रॉप्स को प्रमोट करने के लिए अंडर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम फंडिंग इज गिवन। सो अंडर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम फॉर रिप्लेसिंग पैडी क्रॉप, पैडी को रिप्लेस करके, स्पेशली ग्रीन रेवोल्यूशन वाले बेल्ट में पैडी को रिप्लेस करके पैडी के बदले दूसरे क्रॉप्स को प्रमोट किया जा रहा है। ओके, सो असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड बाय 4 मेजर इंटरवेंशंस, 4 मेजर तरीकों से, बाय 4 डिफरेंट इंटरवेंशंस दे आर ट्राइंग टू प्रमोट अदर क्रॉप्स। फार्मर्स को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि दूसरा क्रॉप लगाओ, आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, वैल्यू एडिशन कर सकते हो, ये मशीनरी यूज करोगे तो तुम्हारा ज्यादा यील्ड आएगा, वो सारी चीजें। हाँ, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं कि ये वाला क्रॉप लगाओ, ये मेडिसिनल क्रॉप या फिर ये एरोमेटिक क्रॉप लगाओ, आपको ज्यादा यील्ड आएगा, यू कैन एक्सपोर्ट आल्सो, ऑल दोस थिंग्स। Okay, so 4 major interventions like alternate crop demonstrations, यानी पैडी की जगह तुम और दूसरा क्रॉप लगाओ, देखो कितना ज्यादा यील्ड आ रहा है, और दूसरे के फार्मर के फील्ड में टेस्ट करते हैं, एंड दे विल शो टू अदर फार्मर्स, सी पैडी से ज्यादा बेनिफिट है इसमें, आपका सॉइल को भी लॉस नहीं होगा, पानी भी ज्यादा यूज नहीं करता है, एंड इट इज गिविंग यू मोर प्रॉफिट। सो सच डेमोन्स्ट्रेशंस आर गिवन। सो फार्म मैकेनाइजेशन एंड वैल्यू एडिशन, सो दूसरे क्रॉप्स में कितना वैल्यू एडिशन है, आप ज्यादा इनकम जो कमा सकते हो, वो चीजें। साइट स्पेसिफिक एक्टिविटीज एंड कंटिजेंसी फॉर अवेयरनेस, सो अगर तुम्हारा टाइम पे क्रॉप ना लगा पाओ या फिर डिले हो जाए तो और क्या कर सकते हो, व्हाट आर द शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स अवेलेबल, वो चीजें। ट्रेनिंग एंड मॉनिटरिंग, वो सब करवाना। सो थ्रू डिफरेंट इंटरवेंशंस दे आर ट्राइंग टू प्रमोट, और दे आर ट्राइंग टू cajole, and they are trying to encourage the farmers to go for different crops other than rice, क्योंकि राइस ने बहुत नुकसान किया है, राइस के सिवा और कोई क्रॉप लगा लो बोल के। Then so however for replacing tobacco crops, टोबैको ग्रोइंग जो स्टेट्स है वहां पर टोबैको को छोड़ के दूसरे क्रॉप लगाने के लिए दे हैव बीन गिवन फ्लेक्सिबिलिटी, वो बोला है कि तुमको जो सही लगता है वो प्रोग्राम्स करो, फार्मर्स को एनकरेज करने के लिए। यहां तो रिस्ट्रिक्शन है कि ये वाले प्रोग्राम्स में ही तुम करोगे, यहां पर तुम जो भी करना है करो, पैसे देके करवाओ फार्मर से या फिर उनको ट्रायल करवाओ, एनकरेज देम समहाउ टू मूव अवे फ्रॉम टोबैको। तो उनका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है स्टेट्स को कि ये ऐसे ही करना है, यही तुमको डेमोन्स्ट्रेशंस कराना है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो हाउएवर फॉर रिप्लेसिंग टोबैको क्रॉप, tobacco growing states have been given flexibility to take suitable activities or interventions for growing alternate agricultural or horticultural crops. So government of India also provides flexibility to the states for state specific needs. So हर एक स्टेट का अलग अलग होगा नीड, so state specific need में flexibility भी मिलता है। and for example हर स्टेट को पैसा भी दिया जाता है, बजट देते हैं, they allocate certain budget। for example पंजाब 7 crore समथिंग देते हैं पर ईयर, ये 2020 का है, 2021 का तो पता नहीं चला क्योंकि उस टाइम पे कोविड चल रहा था, तो वो डेटा भी अवेलेबल नहीं है। सो उस टाइम पे 2020 का डेटा के हिसाब से पंजाब को 7 करोड़ समथिंग दिया गया था। यूपी पंजाब, देन हरियाणा वाज गिवन 3 करोड़, यूपी वाज गिवन 3.2 करोड़, आंध्र प्रदेश वाज गिवन 2 करोड़। सो हर स्टेट को पैसा दिया जाता है अंडर दिस प्रोग्राम, ताकि फार्मर्स को दूसरा क्रॉप लगाने के लिए एनकरेज किया जाए। ओके, सो दैट इज क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन स्कीम अंडर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। सो सी इन सम टॉपिक्स यू कैन ऐड फ्रॉम करंट अफेयर्स, कोई गवर्नमेंट का स्कीम है, हर जगह पर नहीं कर सकते, बट इन सर्टेन केसेस यू कैन डेफिनेटली डू दैट।
So that was about crop diversification. Okay, why it is important or why it is beneficial when compared to monoculture. So monoculture and monocropping का difference meaning में दोनों word लगता है कि same है and people also use interchangeably but दोनों में difference है. So उसमें क्या नुकसान है, what are the disadvantages, then what is crop diversification, वो हमने देखा है. So you should be prepared for any kind of question. So crop diversification के ऊपर short notes लिखो, ऐसे भी आ सकता है एग्जाम में. और हियर जैसे उन्होंने पूछा है कि why it is beneficial than monoculture, उस तरह से भी पूछ सकते हैं. Okay, so you can prepare the notes from the PowerPoint presentation. So that was regarding crop diversification. Thank you very much.